Good morning, students. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine, as I always ask to you. So be positive and stay healthy and fit and fine yourself also, as well as your family member. As you all are the board student, so just keep it in mind that you are going to appear for the board examination in a few months, in a few days. So be focused toward your studies, concentrated, and make your learning more better. Okay, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है. जहाँ भी आपको डाउट्स हों, you can ask to anyone, any teacher. Never make your learning stop. Make yourself practice more and more. Sample papers are with you, previous year papers are with you. Solve it, solve kariye. Okay children, with this I am going to start my topic of today, which is the self. This is a topic which belong to the chapter 2 of your book, Self and Personality. So out of you all have asked me, one of the students have asked me that ma'am please explain the topic. So I am making this video on the topic self, so that you will better understood about the topic self. So children, what do you understand by this word? What do you understand by this word self? Means we or I. Okay, अपनी बात हो रही है self. Self अगर ये word देखें तो it is seem to be a very small word. It seems to be very small word, but it is not such a small. ये देखने में तो बहुत ही small word लग रहा है, but ये है नहीं. यहाँ पे मैं एक और word लिखूंगी. Did you understood the difference between both of them? Identity. Can you got it a difference between both of them? Identity and self. Any difference? Yes, there is a difference. Identity is a narrow term, whereas self is a broad term. Identity एक narrow term है, but self जो है वो एक broad term है. आइडेंटिटी में सिर्फ आपके ही बारे में, what is your quality, who you are, it comes. But self, what you feel, what you think, what you perceive, what you cognitive, all come under the self. So आइडेंटिटी एक नैरो टर्म है एंड सेल्फ जो है वो एक ब्रॉड टर्म है. दोनों की ही टाइप्स हैं. सो हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले तो हमने मीनिंग जान लिया. आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज अ नैरो टर्म एंड सेल्फ इज अ ब्रॉड टर्म. सेल्फ की एक मीनिंग है विच वी डिस्कस हियर नाउ. सेल्फ क्या है? सेल्फ की डेफिनेशन है सेल्फ refers to the totality. Self refers to the totality of an individual's
individual's thoughts, feelings, with regard to himself or herself as an object. This is the meaning of the self, children. If you want to note it down, you can note it down. So let me explain this definition. क्या है ये? Self refers to the totality of an individual thoughts, feeling with regard to himself or herself as an object. So self क्या है? Self मतलब जो भी thought, जो भी feeling हम अपने बारे में रखते हैं, हम अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो क्या है? हमारा सेल्फ है. अब फॉर एग्जाम्पल ये चॉट एक ऑब्जेक्ट है और इस चॉट के लिए हम अगर कोई थॉट रख रहे हैं कि इट इज वेरी स्मॉल एंड इट लुक्स गुड, ठीक है, हमारी कोई थॉट है इससे रिलेटेड या फीलिंग है. सिमिलरली हम भी अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं, और व्हेन वी हैव एनी थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट आवर सेल्फ, so that is the means self. Now children, we will discuss about how many types of identity and how many types of self. I hope you all have written it down if you want to write it. Self टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल सोशल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ, पर्सनल एंड सोशल. हमारा सेल्फ भी दो तरीके का होता है, पर्सनल और सोशल. पर्सनल सेल्फ में क्या क्या चीजें आती हैं? लाइक आवर पर्सनल फ्रीडम, आवर पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल ओरिएंटेशन, ऑल कम अंडर द पर्सनल सेल्फ. सोशल सेल्फ में क्या आएंगे? लाइक यूनिटी, एफिलिएशन, कॉपरेशन, ऑल दिस कम अंडर द सोशल सेल्फ. तो अब क्वेश्चन ये अराइजेज होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, what will be included under the like where we include about our name, our age and our religion, what it include? That is not a part of self. So yes children, that is not a part of self. That is a part of identity. That is your identity. Similarly, our identity is also divided into two parts, personal and social. हमारी आइडेंटिटी भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. हमारे पास दो तरीके की आइडेंटिटी होती हैं, एक होती है पर्सनल और एक होती है सोशल. पर्सनल आइडेंटिटी में क्या क्या आएगा? पर्सन का नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ठीक है. रिलीजन एंड कास्ट आर द पार्ट ऑफ द सोशल आइडेंटिटी. पर्सनल में पर्सन का नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब पर्सनल आइडेंटिटी में है. सोशल आइडेंटिटी आर दोज आइडेंटिटी विच लिंक द पर्सन विद द सोसाइटी. तो दैट इंक्लूड द कास्ट, दैट इंक्लूड द रिलीजन, ओके, नेशनैलिटी. तो दैट ऑल कम अंडर द सोशल आइडेंटिटी.
आपका जैसे आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड, दैट इज द काइंड ऑफ सोशल आइडेंटिटी विच लिंक यू विद द सोसाइटी. So I hope children you understand about the identity, types of identity and types of self. सेल्फ का एक और पार्ट है जिसे हम लोग समझेंगे. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, सेल्फ अगर हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे रखें तो उसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है, और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो उसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है. एज अ सब्जेक्ट वो कुछ और होता है और एज अ ऑब्जेक्ट वो कुछ और होता है. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट की अगर होता है तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मीन हु डज समथिंग, एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट मीन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो सब्जेक्ट का जो रोल होता है और ऑब्जेक्ट का जो रोल होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है एंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ कुछ हो रहा होता है. तो सब्जेक्ट डज समथिंग एंड ऑब्जेक्ट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. नाउ सेल्फ एज अ सब्जेक्ट में जो पर्सन है उसे हम नोअर कहेंगे एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट में नोन आएगा. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एज अ सब्जेक्ट हु डज समथिंग यानी वो कुछ कर रहा है. और फॉर एग्जाम्पल राम लाइक्स चॉकलेट. ठीक है, तो वो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट है. द चॉकलेट्स या फिर somebody does not like the ram, so now the self ram will become the object, self as a object. So this is somewhere is related to the English grammar also. So I hope you understand about this aspect of self. So we get to know that self as a subject, self as a object, what is identity, what is self, what is the difference between identity and self, and what are the types of self. So यहाँ तक हम सभी ने पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक और एक्सपेक्ट है सेल्फ का जिसे कहते हैं विच इज द लास्ट एक्सपेक्ट, द कॉग्निटिव एंड द बिहेवियरल एक्सपेक्ट्स ऑफ सेल्फ. क्या है इसे जानते हैं. व्हाट इज द cognitive and behavioral aspects of self? Cognitive and behavioral aspects of self. ठीक है, अभी हम लोग इससे पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. चिल्ड्रन, हम लोग जानते हैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में क्या होता है. तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है यू विल स्टडी अबाउट सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट आप पढ़ेंगे. पहले तो सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है. अ थिंग विच यू अ कंसेप्ट विच यू नो अबाउट योर सेल्फ इज नोन एज सेल्फ कंसेप्ट. आप अपने बारे में कितना जानते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ कंसेप्ट.
हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ। ओके, देन इसके बाद टर्म्स इसमें आते हैं सेल्फ एस्टीम। क्या आते हैं बच्चों? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, कितना वैल्यू आप अपने आप को देते हो, दैट कम अंडर द सेल्फ एस्टीम। How much you value yourself. Self-esteem is the value judgment about ourselves. कितना वैल्यू हम अपने आप को देते हैं। In this regarding, I want to share an experience with you that some people found to be have very high self-esteem, where some people found to be have very low self-esteem. So children, we are studying about the cognitive and behavioral aspects of self. In that regarding, we have studied about self-concept and self-esteem. In self-esteem, I told you self-esteem means how much you value yourself. And there are some of the areas of the self-esteem where the self-esteem have been shown. Basically, what I am trying to say that the research have been done, and in that research, it has been found that some of the areas where self-esteem are shown. Let me tell you what are the areas where the self-esteem is found to be shown, like physical appearance, okay, this is one of the area. Second is the social areas में भी आपको सेल्फ एस्टीम दिखते हैं. Then is the physical appearance, social, then sports, okay, academic, the most important, okay, ये सारे कुछ एरियाज हैं. एकेडमिक है, स्पोर्ट्स एरिया, सोशल एरिया, फिजिकल अपीयरेंस, जहाँ पे आपको ये लाइक सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है. द पर्सन इज हैविंग द सेल्फ एस्टीम. ठीक है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि ये देखा गया है कि कुछ एरियाज में आपको सेल्फ एस्टीम ज़्यादा मिलेगा. लाइक आप ये देखोगे द सम पीपल हैविंग द सेल्फ एस्टीम वेरी गुड इन फिजिकल अपीयरेंस, इन कॉन्ट्रास्ट सम पीपल. सो इन एरियाज में सेल्फ एस्टीम देखने को आपको मिलता है. लाइक सम पीपल जो होते हैं, किसी का फिजिकल अपीयरेंस में सेल्फ एस्टीम हाई होता है. मीन्स वे बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, दैट आई लुक वेरी गुड, आई लुक वेरी स्मार्ट. वहीं देयर आर सम ऑन द सेकेंड एंड ऑफ सम पीपल हैव द सेल्फ एस्टीम लो भी होती है. तो सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से इफ़ एनी पर्सन हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम ऑन फिजिकल अपीयरेंस एरिया, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें दे आर वेरी मच ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ. अपने बॉडी को लेके या अपने फेस और अपने कोई भी अपीयरेंस को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं. उनको हमेशा अजीब सा लगता है और दे ऑलवेज मेक देमसेल्फ टू बी लुक गुड. अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, गुड बनाते हैं. इसी तरह सिमिलरली सोशल एरिया की अगर बात करें तो इस पर भी कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है एंड सम पीपल हैव द सेल्फ एस्टीम लो. It has been found that those people who are having a very high self-esteem in social area, तो उनके फ्रेंड सर्किल अच्छे होते हैं, they have a good peer groups,
दे आर वेरी आउटगोइंग, मूविंग, फ्रेंडली, ऐसे होते हैं। और जिनकी सेल्फ एस्टीम लो पाई जाती है यहाँ पे, तो वो थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, लेस टॉकेटिव होते हैं। और ऐसे लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम सोशल एस्पेक्ट्स पे लो है, तो ईजिली डील भी नहीं कर पाते लोगों से, इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते, उनका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन थोड़ा करने में थोड़ा प्रॉब्लम उनको होती है। सिमिलरली एकेडमिक में जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई है वो बहुत आगे प्रोग्रेस करते हैं। वहीं इसी एरिया पे अगर किसी की सेल्फ एस्टीम लो है तो यानी उनको वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, या मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता। तो अ काइंड ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एकेडमिक में होने से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बट वहीं जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है वो प्रोग्रेस करते हैं, जो उनको चाहिए होता है दे अचीव इट। तो दे आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर वेरी गोल डायरेक्टेड। नाउ स्पोर्ट्स भी एक एरिया है जहाँ पे सेल्फ एस्टीम देखने को मिलती है। लोग बहुत अपने आप को फिजिकली फिट एंड फाइन रखते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। वहीं जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है तो वो बचना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं। तो ये 4 मेन एरियाज हैं जहाँ पे सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सेल्फ एस्टीम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, ठीक है। इट इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम के बाद हमें जानना है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी ये भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है सेल्फ का। सेल्फ एफिकेसी मीन्स हाउ मच यू आर एफिशिएंट, हाउ मच यू कंसिडर योरसेल्फ कैपेबल और पोटेंशियल टू अचीव एनीथिंग। जहाँ सेल्फ एस्टीम में हमने जाना कि हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ। सेल्फ एफिकेसी मीन्स कितना आप अपने आप को एफिशिएंट मानते हो, कितना आप अपने आप को कैपेबल और पोटेंशियल मानते हो किसी भी वर्क को करने के लिए। हाउ मच यू फील योरसेल्फ टू बी पोटेंशियल, टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, दैट इज सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी के बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। दिस इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है सेल्फ का, सेल्फ रेगुलेशन। हाउ मच यू रेगुलेट योरसेल्फ, कितना रेगुलेशन आपका खुद पे है। हाउ मच यू आर एबल टू रेगुलेट, हाउ मच यू आर एबल टू मॉनिटर, एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग कितनी है। यू सेल्फ रेगुलेशन जिनमें होता है दे डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू रेगुलेट देमसेल्फ, दे डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू डिसिप्लिन देमसेल्फ। वे अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के बाद आता है सेल्फ कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो अगेन द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। ये क्या है? ये फिर से बिहेवियरल एस्पेक्ट है सेल्फ का, सेल्फ कंट्रोल। Self control means how much you have the control on yourself, and control on yourself includes so many things. Control over your thoughts, control over your feelings, control over your emotions, control over your behavior, control over your act. All things include the self control.
In a simple language, self-control means the delay in the gratification of need is known to be self-control. हम लोग मानते हैं अगर हम लोग अपने बेसिक नीड्स को डिले करते हैं तो यानी हमारा खुद पे सेल्फ कंट्रोल है. जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक व्हेन यू आर इन इन्फेंसी ये नहीं होता, बट एज यू ग्रो अप इट ऑल्सो डेवलप इन यू. तो सेल्फ कंट्रोल मीन्स हाउ मच you are able to delay your needs, your basic needs. That is self control. There are some techniques also which are discussed in your book about the self control. Let us discuss that one. What are the techniques of self-control? 3 main important techniques हैं. First, first one is observation of one's own behavior. Second is self-instruction. And third is self-reinforcement. ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं which come under the technique of self-control. जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो इन 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं. ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर, अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करना खुद से. देन सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यू डोंट रिक्वायर एनीवन टू बी इंस्ट्रक्टेड, यू इंस्ट्रक्ट योरसेल्फ ओनली, सेल्फ इंस्ट्रक्शन. एंड व्हेन यू अचीव दैट वन you will reinforce yourself, that is self reinforcement. So basically it is all about the self, it is not about the other. आपको नहीं ज़रूरत है कि कोई और आपको ऑब्जर्व करे, कोई और आपको इंस्ट्रक्ट करे, कोई और अनदर पर्सन आपको रिइंफोर्स करे, यानी आपको कोई रिवॉर्ड दे. सेल्फ मतलब हम अपने आप का ऑब्जर्वेशन खुद करेंगे, खुद को ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर वो चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने आप को खुद रिइंफोर्समेंट देते हैं. तो दैट इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. So children, here we have discussed all the cognitive and the behavioral aspects of self. Today आज मैंने पूरा ये टॉपिक सेल्फ पे ही आपसे डिस्कस किया. एक और पार्ट है सेल्फ का विच इज लास्ट वन, द कल्चर इन द सेल्फ. हाउ सेल्फ इज रिलेटेड टू द कल्चर, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं. तो हम लोग सेल्फ के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे. ये मैं रिवीजन आपका कर रही हूँ. दिस टॉपिक आई ऑलरेडी टॉट टू यू बट यू ऑल हैव आस्क्ड टू मी, सो दैट्स वाई. सो आई होप दिस टॉपिक अब आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो लेट अस डिस्कस ऑल्सो अबाउट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विद द सेल्फ. कल्चर एंड सेल्फ. कल्चर एंड सेल्फ. कल्चर की जब हम लोग बात करें तो हम लोग 2 तरीके के कल्चर की बात करते हैं हमेशा. एक होता है इंडियन कल्चर और एक है वेस्टर्न कल्चर. तो दोनों में सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो डिफर है. In both of them the self concept is differ. क्या डिफरेंस है आप okay, what do you think, what will be the difference? So इंडियन कल्चर में हम लोग कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, मिल के रहते हैं, यूनिटी की बात करते हैं. वहीं वेस्टर्न में इंडिविजुअलिस्टिक की बात होती है, अकेला. ओके, नॉट कलेक्टिविज्म. सो इंडियन में
जो सेल्फ है वो कलेक्टिव सेल्फ है, वेस्टर्न में जो सेल्फ है वो इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ है। ठीक है, इंडियन में जो सेल्फ है वो कलेक्टिव है और वेस्टर्न में जो सेल्फ है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडियन में जो सेल्फ है वो ग्रुप का पार्ट है। सेल्फ इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो इंडिया में सेल्फ जो है वो पार्ट ऑफ ए ग्रुप का हिस्सा है। पर वेस्टर्न में आप जाएंगे तो सेल्फ इज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, वो अकेले है। ठीक है, इंडिया में कल्चर और सेल्फ में कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, बट देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन द सेल्फ एंड द ग्रुप, बट इन वेस्टर्न देयर इज अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द सेल्फ एंड द ग्रुप। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम से। लाइक आप देख सकते हैं, अगर इंडियन की बात करें, इंडियन कल्चर में जो सेल्फ है ये ग्रुप, बहुत बड़ी जो ग्रुप है इसका पार्ट है। पर वेस्टर्न में इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी है और ग्रुप एक अलग एंटिटी है। सेल्फ और ग्रुप अलग अलग है, बट हमारे इंडिया में सेल्फ जो है वो एक बड़े से ग्रुप का एक पार्ट है। तो हम लोग इंडियन में हमारा जो सेल्फ है वो कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन है और वेस्टर्न में इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन है। तो यही डिफरेंस है कल्चर का सेल्फ से। सो विद दिस आई जस्ट कंसिडर दैट यू अंडरस्टूड everything very properly. Thank you so much for observing this one. If you still feel any question, please ask in the classroom. Thank you so much.